حرمین شریفین کو جس طرح ویران کر دیا ہے، باقی ساری ایکٹیویٹیز سعودی عرب میں بڑھ رہی ہیں اور حرمین کی ویرانی ویسی کی ویسی ہے. آپ مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں کر رہے. یہ ایک المیہ ہے اور یہ MBS کے اوپر، پورے اس خاندان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. سعودی عرب میں کیا ہوا کہ انہوں نے اتنی لبرٹیز دے دی ہیں، کچھ لبرٹیز ایسی ہیں جو پاکستان میں بھی ابھی نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے، وہ جو سٹی ہے نا، دیٹ کمز سینٹر آف دیٹ گریٹر اسرائیل پلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رباب نقوی اور میرے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، آج ہم سعودی عرب کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں جو حد سے زیادہ آزادی بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو پتہ ہے رباب، میں اکثر کوشش کرتا ہوتا ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار سے نا اپنی گفتگو کا اور آپ کے سوالات کا جواب کا آغاز کروں. تو اس موقع پر اور آج کے دن کا جو ماحول جو بنا ہوا ہے سعودی عربیہ کا، وہاں علامہ اقبال نے جو یہ شعر آج سے تقریباً آپ سمجھیں 100 سال پہلے کہا ہوا تھا، آج بھی وہ ویسے کا ویسے ہی منطبق آ رہا ہے آج کی صورتحال پر. حالانکہ علامہ اقبال نے یہ شعر جو تھا نا، موجودہ جو حکمران خاندان ان کے جد امجد کے بارے میں کہا تھا، جنہوں نے کہ ترکوں کے ساتھ جو بھی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جو انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، جس طرح ان کو وہاں سے ایک ظالمانہ طریقے سے ایک اتنی شاندار مسلمانوں کی حکومت جو تھی، اگرچہ وہ ڈاؤن فال کی طرف تھی، لیکن ڈاؤن فال کی سپیڈ کو اپنوں نے ہی اور تیز کر دیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا. تو شعر جو ہے نا علامہ اقبال کا، وہ یہ ہے کہ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم پکاریں ہری ہری. تو یہ بڑا ہی ایک درد ناک، درد انگیز اور درد خیز یہ شعر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جب سے یہ جو ہے نا خاندان جو ہے نا برسر اقتدار آیا ہے سعودی عرب کی، جب سے انہوں نے عنان اقتدار سنبھالی ہے، بادشاہت قائم کی ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ تمام جو ہے نا، یہ میرا کسی مسئلے کی بنیاد پہ میں نہیں یہ کہہ رہا، سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو ہے نا جو شہنشاہیت ہے، یہ اسلامک جو ہے نا یہ وے آف گورننس ہے ہی نہیں. اور جس طریقے سے یہ فیملی میں چل رہا ہے سلسلہ، یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، نہ اس کا وہ اس میں کوئی گنجائش ہے، نہ اس کا ہماری اسلامک جو ہے نا میتھڈ آف ٹرانسفر آف گورنمنٹ کا ہے یہ طریقہ. تو بات یہ ہے کہ جب اس خاندان نے ٹیک اوور کیا تو جو فرق تھا نا اس وقت ترکوں میں اور ان میں، وہ یہ تھا کہ ترک جو تھے نا، وہ تمام تر خرابیوں کے باوجود، وہ تو ظاہر ہے کہ جب قومیں 8-8 9-9 سال حکومت کرتی ہیں، 3 بر اعظموں پر حکومت کرتی ہیں، تو آفٹر 8-9 سینچریز ویکنس آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی تک پچھلے 2000 سال کی تاریخ میں کوئی بھی جو ہے نا پاور، کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم ترکوں کے بنائے ہوئے بینچ مارک کو اس کے قریب اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکا. تو بہرحال وہ ایک عظیم الشان جو سلطنت کی، ان کو ختم کرنے میں انہوں نے پھر غیروں کا، دشمنوں کا، انگریزوں کا اور فرینچ کا اس وقت ساتھ دیا، اور وہ جو تاریخ کی جو خون ریز ایک باب ہے وہ سب کو پتہ ہے. بہرحال وہ پچھلی باتوں کو چھوڑتے، کمنگ ٹو دی پوائنٹ، کمنگ آن ٹوڈے سینیریو کہ آج کیا ہو رہا ہے. آج دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کا، تو میرا خیال ہے اچھی خاصی جو پرسنٹیج ہے، میرا اندازہ ہے کہ 30 سے 40% پاکستانی جو ایڈلٹس ہیں وہ میرا خیال ہے حج عمرہ وہ کر چکے ہوں گے، اور سب نے پریکٹیکلی تھرو ڈیکیڈز یہ دیکھا ہے کہ وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں کا جو ان کی مذہبی جو تھی نا سختی بہت زیادہ تھی. یعنی لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ جن چیزوں کو یہاں ہم نارملی بھی کرتے تھے، وہاں ایک خاص مسلک کے ریجڈ پیروکار ہونے کی وجہ، انتہا میں سمجھو کہ ایکسٹریمسٹ ہونے کی لیول پہ جا کے وہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ یہ عبادت کریں، یہ نہ کریں، یہاں سے جو ہے نا آپ احرام باندھیں، یہاں پر نہ باندھیں. وہ بہت مسائل ہیں، بہت زیادہ وہ تفصیل طلب ہیں، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین کے جو کمنٹس آئیں گے ان کے مطابق بھی ایڈریس کرتے
करते करते, लेकिन आज जो सूरत हाल बनी हुई है ना वो ये है कि यकदम इतनी लिबर्टी दी गई है और दी जा रही है कि देखें, अगर ये चीज़ें ग्रेजुअल आती रहती है तो एक ना सोसाइटी का एक इर्तकाई अमल होता है, इवोल्यूशन होती है, हर सोसाइटी में होती रहती है। कि देखें ना, आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, आज से 60 साल पहले ना, 60-70 साल पहले ख़वातीन जो होती थी, जिस तरह अभी अफगानिस्तान की ख़वातीन का दिखाया जाता है ना शटल कॉल बुरका, पाकिस्तान में भी वो बुरका आम था। अच्छा, उसके बाद इवोल्यूशन हुई तो फिर वो ना वो नकाब वाले बुरके आ गए। मैंने खुद सुना हुआ है, खुद मैंने देखा हुआ है कि जब ख़वातीन शटल कॉक बुरके से नकाब वाले उसके ऊपर आए थे तो उसको जो ख़वातीन शटल कॉक बुरका पे वो उसको बहुत बड़ी फहाशी गिनती थी कि यार देखो जी रेशमी बुरके पहन के फिर ये तो सारा कोई नजर आता है। या उसके बाद फिर जैसे जैसे होता गया वो सबको पता है, अब तो सिंपल गाउन्स आ गई हैं, जब जो भी चीज़ें आ गई, गाउन आ गया, अबाया आ गया, मतलब वो तो जिसने जो पहनना है वो तो एक अलग दास्तान है। लेकिन देखें अब सऊदी अरब में क्या हुआ कि उन्होंने इतनी लिबर्टीज़ दे दी हैं, कुछ लिबर्टीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी अभी नहीं है, पाकिस्तान से भी अब चंद कदम आगे बढ़ चुका होगा। और इसके अलावा अभी वो सबको पता है कि एक शहर बना रहे हैं, वो कभी कहा जाता है कि ये LA टाइप है, कभी कहा जाता है कि ये जो है ना लॉस वेगस टाइप है। और कुछ जो बहुत जो फ़िक्र रखने वाले हैं एनालिस्ट हैं, यहाँ मैं एक इमरान खान है जो है ना एनालिस्ट हैं, वो एंकर हैं, बहुत अच्छा, मैं उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ। तो उनका एक दिन प्रोग्राम मैंने यूट्यूब पर उनके चैनल पे देखा था, तो उन्होंने वो जो शहर बना रहे हैं उसका उन्होंने पूरा फिर बना के दिखाया था कि ये जो शहर है ना, ओवरव्यू दिया था, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है उनका, मौजूद है यूट्यूब पर आज भी। देखो अच्छी बात, जो भी करता है उसको फॉलो करना चाहिए, कोट करना चाहिए। तो ये एक किस्म का मेरा एट्रीब्यूट है टू इमरान खान, जो उन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च करके बनाया था। तो उसमें उन्होंने बताया था, एंड आई एग्री विद हिज पॉइंट, कि ये जो शहर है अपेरेंटली लग रहा है इस वक्त के जैसे ये मदीना मुनव्वरा से कोई कुछ 200 या 300 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो फिर ये दिखाया था, जो इसराइल की ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, जो मैप उन्होंने प्रपोज किया हुआ, उसमें वो जो सिटी है ना, दैट कम्स सेंटर ऑफ दैट ग्रेटर इसराइल प्लान। अब ये देखें कि ये दानिस्ता तौर पे हो रहा है या ना दानिस्ता तौर पे, मेरा नहीं ख्याल ये ना दानिस्ता तौर पर ऐसे बड़े बड़े प्लान नहीं बनते, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं और सदियों की वर्किंग होती है, दहाइयों की इसके ऊपर प्रैक्टिस हो रहा होता है उसके ऊपर कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, एक तरफ तो ये होगा बहुत लिबर्टी हो, चलो ठीक है, आपने अगर कहते हैं मॉडर्न दुनिया के साथ, मैं हमेशा पहले भी एक दो मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि अगर आपने मॉडर्नाइज होना है, मॉडर्न दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो उसमें दूसरी तरफ भी आए ना, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी आए, दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। वो सिर्फ जो है ना पुरतयश गाड़ियों तक ही महदूद है, कोई हमें बिल्डिंगें बना ली, गाड़ियां ले ली, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बना लें आपके पास पैसा है, यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, आपके पास ऑयल है, आपके पास दुनिया के, यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आप उधर भी जाएँ अगर आप। लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि ख़वातीन को अकेले, मतलब वो जो ठीक है अकेले ट्रैवल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वाई यू केप्ट इट रिस्ट्रिक्टेड फॉर डिकेड्स। आपने तो दहाइयों तक तो औरत अकेली बाहर ही नहीं निकलनी, ट्रैवल नहीं करनी, गाड़ी नहीं चलानी। अब यह कि वो अकेली किसी होटल में भी रह सकती है, हज उम्रे की भी पाबंदी कर दी, ठीक है, वो ठीक है। अगर आप एक साइड पे इतना मॉडर्न होने जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर कोई मॉडर्न इंजीनियरिंग भी लेके आए ना, कॉमन मैन के लिए कोई यहाँ गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रियाँ लगाएं आप। जैसे अब ये कोरोना का इतना ज़्यादा हरासमेंट जितनी वहाँ उन्होंने दिखाई है, हरमैन शरीफैन को जिस तरह वीरान कर दिया है, तो यहाँ तो सबसे पहले अर्जेंटली मेरा ख्याल ये होना चाहिए था कि सऊदी अरब ने दुनिया की लेटेस्ट वायरोलॉजी लैब होनी चाहिए थी। और वो लॉजिकल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ लाखों नहीं करोड़ों ज़ायरीन ने आना है, तो ठीक है आपको तो बहुत ज़्यादा उसके लिए एफिशिएंट, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी लेटेस्ट दुनिया का रिसर्च सेंटर वायरोलॉजी के ऊपर, नॉट ओनली ऑन दिस कोरोना, आपको तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक चलनी है। शक ये पड़ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमारा मुकद्दस तरीन जो हमारा फरीज़ा है, कहीं इसको मुस्तकिल तौर पे आने वाली मुसलमानों की नस्लों के ज़हनों से महव करना, तो ये इसका मकसद नहीं है कि देखें बाकी सारी एक्टिविटीज़ सऊदी अरब में बढ़ रही हैं और हरमैन की वीरानी वैसी की वैसी है। आप मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था कि इसराइल में यहूदियों का एक फेस्टिवल था, उनका रिलीजियस फेस्टिवल था, 1 लाख बंदा, ये इंटरनेशनल मीडिया पे क्लिप आ चुके हुए हैं, 1 लाख का वहाँ मजमा हुआ था, जैम पैक्ड थे, जैसे रमी
गर्मी के वक्त या तवाफ़ ज़ियारत के वक्त मुसलमान होते हैं इकट्ठे जुड़ के चलते हैं। 1 लाख यहूदियों का इज्तिमा था और उसमें स्टैम्पीड हुई। 40 उन्होंने खुद एडमिट किया था कि 40 वहाँ वो फौत हो गए, मर गए। और उस दिन भी वहाँ वो मजहबी रसूमात हो रही हैं और हरमैन में जैसे ना कहते ना वो जिन फिरा हुआ है, बंदा नहीं नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलानी चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ, इससे तो फिर यही ज़ाहिर होता है ना कि आप अपने किसी और की डिक्टेशन पे चल रहे हैं, आप मुसलमानों के जज्बात का ख्याल नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो है ना ये जहन में रखनी चाहिए। अगर ठीक है MBS जो है अगर वो एक जदीद जो सऊदी अरब बनाना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह बनाएं। आपके पास आबादी थोड़ी है, रकबा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वाई डोंट यू मेक इट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर होल मुस्लिम वर्ल्ड। आप दुनिया के मुसलमानों की ब्रेन के लिए यहाँ चीज़ें बनाएं, यहाँ इंडस्ट्री लेटर, आप IT बनाएं, आप नई नई दुनिया को एप्लीकेशन बना के भेजें, कंप्यूटर साइंसेज में जाएं, फिजिक्स में जाएं, वायरोलॉजी में जाएं, एरोनॉटिक्स में जाएं। आप जो है वो जो अल्लामा इकबाल का जो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो आप जाएं वो चीज़ें में जाएं, आप स्पेस बनाएं, स्पेस शटल बनाएं, मतलब बहुत है वहाँ भी आए ना। अभी उस तरह की कोई बात अभी तक सुनने में नहीं आई। तो ये एक मैं समझता हूँ ये एक अलमिया है और ये MBS के ऊपर, पूरे इस ख़ानदान के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी अदा सही तरीके से नहीं करेंगे तो अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी आज सारी दुनिया कह रही है कि अमेरिका इज़ नो मोर सुपर पावर, और अगर अमेरिका अब नो सुपर पावर के हलवार है तो फिर सऊदी अरब के हुक्मरानों को भी उनकी जो पैरवी है ना उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकलें और अपने मजहबी बुनियादों पर तमाम मसालक के मुसलमानों को साथ लेके चलें, सबके अकीदों का एहतराम करें, सबको प्यार करें, सबको बराबर का मुनासिब नुमाइंदगी दें और जो मजहबी रसूमात है उसको खोलें। अब ये बहुत हो चुका है, मुसलमान तड़प रहे हैं। हमें पता है कि कॉमन मुसलमान जो है, ठीक है हम गुनाहगार हैं, लेकिन इस इबादत के साथ तमाम मुसलमान जो हैं दुनिया के वो इश्क करते हैं। लोग ज़िंदगी भर बचत की ज़िंदगी भर की बचत इसके लिए बहुत सारे मुसलमान करते हैं। इसलिए इसको लॉजिकल तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इसको मैनेज करना चाहिए और मेरे ख्याल में नो इट्स टू लेट, आप इसको खोल देना चाहिए। अब वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ जो लेयर पॉइंट जो बनाए गए हैं, जो भी बनाए, सबको पता है, मीडिया पे आ चुका होगा कि कौन कौन सी एंटरटेनमेंट वहाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, जहाँ मॉब्स भी आते हैं, गैदरिंग्स भी होती हैं। अभी पिछले दिनों वो देखे सारी दुनिया देखा था कि यूरोप में जो फुटबॉल का मैच हुआ है, सारी दुनिया बैठी हुई है वहाँ पर। और मैं तो सबसे बड़ा ये कहूँगा देखें आपके साथ इसराइल है, इसराइल में यहूदियों की सारी रिचुअल चल रही हैं। अभी नाज़रीन मैंने तो एक मिसाल दी है ना यहूदियों की, मैंने ये किसी तात्सुब बुनियाद पर नहीं दी। आप देखें कुंभ का मेला हुआ है इंडिया में, वो क्लेम करते हैं कि वहाँ वो टेंस ऑफ मिलियन, वहाँ वो होता है कि 1 करोड़ से ऊपर बंदा आता है, हिंदुओं का ये क्लेम है। आई एम नॉट चैलेंजिंग देयर क्लेम, लेकिन ये तो दुनिया सारी ने देखा है ना, वहाँ अगर नहीं रोका किसी ने तो फिर सारी पाबंदियाँ, सारे SOP मुसलमानों पर ही फ़र्ज़ हो गए और वो भी हरमैन शरीफैन पर ही हो गए। ये बहुत काबिल गौर, काबिल फ़िक्र और काबिल हल जो है ना ये मसला है। और अब देखें पहले कह रहे ये वैक्सीनेट हो गया, अब ये आइडिया भी आ गया कि इवन गेटिंग वैक्सीनेटेड डज नॉट मीन यू आर 100% प्रोटेक्टेड। बात यह कि ये बीमारी का अलग भी मैं बताऊँगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी अब कंट्रोवर्सी दुनिया में आ चुकी हुई है। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब के हुक्मरानों को जो है ना प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल टू ऑल मुस्लिम डिसीजन करने चाहिए। सिर्फ अमेरिकन एक्सेप्टेंस को अल्टीमेट जो है ना लाइसेंस टू डू एनी वर्क नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की, लेकिन चूंकि ये बड़ा वास्ट टॉपिक है और उस पर बहुत ज़्यादा आप बता सकते हैं, आपका तज्ज़िया बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन अगर आप चाहते हैं इसके अलावा, वैसे तो ये गुफ्तगू और ये टॉपिक जारी रहेगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये ऑप्शन देना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स हमारे पास होता है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर मज़ीद बात हो या और टॉपिक्स जिस पर आप डॉक्टर साहब का तज्ज़िया चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे रुबाब नकवी और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।